Good morning, students. Tomorrow, yesterday we was learned some different words like nutrients, autotrophs, heterotrophs, photosynthesis, stomata, cytoplasm, process of photosynthesis, chemical reaction that are used in photosynthesis, pictures and एल्गी हेटरोट्रॉपिक मोड्स में हमने पैरासाइट्स देखा होस्ट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड आई वॉज gave you some work like pictures and keywords. I hope you all done the work. Okay, now come in our today's topic, and our first topic is saprophytes. Do you know what is saprophytes? Let's find it. You might have seen packet of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotted wood during the rainy season. Let's find out what type of nutrient they need to survive, from where they get them. नॉर्मली मशरूम्स देखिए, मशरूम्स नहीं भी देखा है तो जो रोटेड वुड होती है रेनी सीजन पे, उनमें एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फॉर्म होने लगता है. दैट इज़ मशरूम. ओके, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, दैट इज़ अ पैकेट ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल. ये रोटेड और डिकेड मटेरियल में फॉर्म होते हैं. डिकेड मीन्स जो ख़राब होता है, सड़ा होता है, दैट इज़. तो फाइंड व्हाट इज saprophytes. You can perform an activity. In this activity you can take a piece of bread, moist it with water, and leave it at warm place for 1-2 days. After 2 days, check what happened with this bread. Okay, you will see the patches on the bread, just like this. These patches are also in green, blue, brown, white, any other colors. Okay, and take a magnifying glass and observe it carefully, and see, look what you see, and note your observation. अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे? कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड. दैट इज स्पोरोफाइट्स मीन्स. सो स्पोरोफाइट्स क्या हुए? जो डेड एंड डिकेड थिंग्स पर ग्रो करते हैं. ठीक है. ओके, लुक, these organisms are called fungi. It's called fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decayed matter and convert it into a solution. फंगीज़ क्या करते हैं? जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हम देखते हैं. ये एक जूस सिक्रेट करते हैं डेड एंड डिकेड मैटर पर, और वो मैटर को वो कन्वर्ट करते हैं. Fungi secrete the digestive juice on decayed and dead matter and convert it into a solution, and then they get nutrition from it. Okay, this mode of nutrition, in which organisms take nutrients in solution from dead and decayed matter, is called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Okay. So what is saprotrophic nutrition? The mode of nutrition that are get from dead and decayed matters is called saprotrophic nutrition. And what is saprophytes? Saprophytes that perform saprotrophic mode of nutrition. Clear? And saprotrophic nutrition में प्लांट्स क्या करते हैं? डेड एंड डिकेड मैटर पे अपना एक जूस सिक्रेट करते हैं, एंड वो जूस को मिक्सअप करके वो डिकेड मैटर को एक सॉल्यूशन पे कन्वर्ट करते हैं, एंड
देन उससे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती हैं। ओके, सो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था जो ऑटोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स तो क्लियर हैं, प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। देन हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हमने अभी तक 3 टाइप्स देखे। फर्स्ट टाइप इज़ पैरासाइट, पैरासाइट्स प्लांट्स जो अदर प्लांट पर सर्वाइव करते हैं, उस प्लांट से सारा न्यूट्रिशन सक करते हैं, क्लियर। और जो मेन प्लांट होता है जिससे वो न्यूट्रिशन सक करते हैं, दैट इज़ होस्ट। देन द सेकंड नंबर इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम insects. And the third type is saprotrophic nutrition or saprotrophs. Saprotrophic nutrition means mode of nutrition जो dead and decayed animals और dead और decayed matter से वो उन्हें मिलता है। Okay, now look at there. During the rainy season the spoil many things. Ask your parent about the wait. Fungi also grow on pickle, leather cloth and other articles that are left in hot or humid weather for a long. जो humid weather होता है मीन्स वेदर में जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है उस टाइम पे पिकल, लेदर क्लॉथ और ऐसे बहुत सारे हमारे आइटम्स होते हैं जिनमें फंगीज ग्रो करती हैं। आप फॉर एक एग्जांपल तो मैंने ब्रेड का दिया, आपके यहाँ पर जो चपातीज़ है, चपातीज़ को भी जब हम 1-2 डेज़ के लिए ऐसे रखते हैं तो चपाती में भी फंगीज ग्रो करने लगती हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल many things. Ask your parent about the menace of fungi in your house. Means आपके पेरेंट्स या फिर जो भी एल्डर हैं उनसे पूछ सकते हो कि फंगीज का वो क्या सोल्यूशन करते हैं हमारे होम में, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Fungi's की जो स्पोर्स होते हैं that are present in our environment and air, वो जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में। when they find a moistured place, a wet place और a warm place, वो स्पोर्स वहाँ पर जाते हैं और जर्मिनेट होने लगते हैं। जर्मिनेट मतलब वो मल्टीप्लिकेशन होता है उनमें, वो फॉर्म करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं जब उन्हें ऐसा कुछ मॉइस्चर्ड प्लेस मिलता है। कभी ऐसा भी होता है हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, जैसे अभी रेनी सीजन में हमारे क्लॉथ्स प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाते तो मॉइस्चर्ड क्लॉथ को ही फोल्ड करके रखते हैं। सो वहाँ पर ऐसे ही क्लॉथ या फिर ऐसे ही थिंग्स को फंगीज फाइंड करती हैं और फिर वहाँ पर जाकर वो ग्रोथ करती हैं, क्लियर। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। सो ये तो हो गया फंगी का टॉपिक, क्लियर। नाउ हमारा जो अदर है दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स यहाँ पर 2 टाइप्स के प्लांट साथ में ग्रोथ करते हैं और अपने न्यूट्रिशंस को एक्सचेंज करते हैं, क्लियर, ठीक है। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में 2 प्लांट्स सेम हमने देखा था पैरासाइट्स में, बट पैरासाइट्स में जो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ एक ही प्लांट से, मीन्स होस्ट प्लांट से पैरासाइट प्लांट्स पर ही वो न्यूट्रिशन जाता है। बट जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ही जो प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करते हैं। कैसे, देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब दे आर शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन एंड दे ग्रो टुगेदर, लिव टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। कुछ फंगीज ऐसी भी होती हैं जो रूट्स पे ग्रोथ करती हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इट रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. फंगीज का, कुछ फंगीज रूट पे ग्रोथ करती हैं और उनका वर्क होता है प्लांट्स
फूड प्रिपेयर जब करता है तो वहाँ से तो न्यूट्रिशन फंगीज तक पहुँचता है। एंड फंगीज का वर्क होता है जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना एंड प्लांट तक रिटर्न करना। ओके, इन ऑर्गेनिज्म कॉल लाइकेंस, ये नॉर्मली जो सिम्बायोटिक रिलेशन परफॉर्म करते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक कॉमनली एंड मोस्ट मतलब जो कॉमनली एग्जांपल है, जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इज लाइकेन। ओके, अ क्लोरोफिल containing partner which is an algae and fungus live together, it's called lichens. And a chlorophyll containing partner, like algae, chlorophyll are also present in algae and fungus live together. So algae and fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and it return the algae provide food which is prepared by photosynthesis. So they are an example of symbiotic relation, and the two organisms are algae and fungi. ठीक है, algae and fungus, they are live together because of chlorophyll. Algae prepare their food by photosynthesis and fungus provide shelter, water and minerals to the algae. Clear? Means algae photosynthesis की प्रोसेस के थ्रू फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एंड जो फंगस है, फंगस रूट्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे उसे सेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स रिटर्न करता है एल्गीज को। सो ये था एक एग्जांपल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। सो इस टाइप से हमारे 4 टाइप्स, मतलब हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हमने 4 टाइप्स क्लियर किए। क्लियर? नाउ कम इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Firstly, I will read this paragraph and explain you this shortly. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field, or gardener using them in lawns or pots? Do you know why they are added to the soil? You learn that plant absorb mineral nutrition from the soil, so their amount in the soil keep on the declining. Fertilizer and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. Normally आपने देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स स्प्रेडिंग सम फर्टिलाइज़र एंड मैनर इन फील्ड्स में। जब वो कभी फील्ड्स देखा होगा या फिर जो गार्डनिंग करते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा, कुछ जो गार्डनर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं वो लोग अपने फील्ड पर प्लांट्स लगाने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। सो वो फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, हमें ये पता है कि प्लांट नीड्स मिनरल्स, वाटर्स एंड अदर न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। सो सॉइल में जब प्लांट्स सॉइल का जो भी न्यूट्रिशन है, सॉइल के जो भी मिनरल्स को जब प्लांट्स रूट्स के थ्रू सक करते हैं, सो सॉइल का जो क्वालिटी है वो क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। सो वहाँ पर सॉइल को नीड होती है मैन्योर की, फर्टिलाइज़र की, कि वो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सके। मीन्स वहाँ पे जो सॉइल की क्वालिटीज़ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें नॉर्मली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ऐसे अदर न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसलिए टाइम टू टाइम वहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी होता है। ओके, यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। नॉर्मली प्लांट्स को एंड क्रॉप्स को नाइट्रोजन की भी इक्वली ही रिक्वायर्ड होती है, बट जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो नाइट्रोजन है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। डेफिशिएंट मीन्स उसकी कमी होने लगती है वहाँ पे। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ द मैनर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन
in a solution form. The bacterium called rhizobium can make autotrophic nitrogen and convert into a soluble फॉर्म. मीन्स ये तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर पे सबसे जो ज़्यादा अमाउंट है गैसेस का दैट इज़ नाइट्रोजन. बट प्लांट कांट गेट इज एज अ गैस फॉर्म. प्लांट्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उन्हें गैस फॉर्म पर ऑब्जर्व कर सके. सो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो नाइट्रोजन को सॉल्यूबल सब्सटेंस पे कन्वर्ट करने का वर्क होता है राइजोबियम का. वो राइजोबियम दैट इज़ अ बैक्टीरिया. ठीक है, ये बैक्टीरियम ये प्रेजेंट होता है. राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जिसको प्लांट्स इजीली सक कर सकें. एंड बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन food, so it live in the roots of the gram, pea, moong, beans and other legumes and provided them with nitrogen. We know that nitrogen is the source of protein. मीन्स प्रोटीन में ही नाइट्रोजन से ही हमें प्रोटीन मिलता है. एंड जो प्लांट जो वेजिटेबल्स या फिर जो फूड है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है दैट आर बीन्स. बीन्स जस्ट लाइक ग्राम, पी, मूंग, बीन्स. सो जो बीन्स होते हैं उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है. सो प्रोटीन उन्हें कैसे मिलता है, उन्हें फिर नाइट्रोजन की रिक्वायर होती है. तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ उनकी जो रूट्स है, रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम. राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है और वो जो सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल सब्सटेंस सॉइल के थ्रू फिर वो सक करते हैं और उन्हें प्रोटीन मिलता है. बट राइजोबियम एबल नहीं होता अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो वो डिपेंड होता है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए. ठीक है. Most of pulses are obtained from leguminous plant. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. The plant get return these rhizobium bacteria to shelter. They have symbiotic relationship. Same ऐसे ही ये भी symbiotic relationship perform करते. Symbiotic relationship का one example हमने देखा lichen and algae, and the second example is beans tree and rhizobium. Okay. Then this associate is of great signification for the farmer. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plant are grown. यहाँ पर उन्हें प्लांट्स को एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की नीड नहीं होती है, बिकॉज लेग्यूमिनस ही नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए सफिशेंट होते हैं. In this chapter, you learn that most of the plant are autotroph. Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasites and saprophyte. They derive nutrition from the other organism or animal are categorized as heterotrophs since they depend on the plant and the other animal for food. Can we say that insectivorous plants are पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स. मीन्स हमने डिफरेंट टाइप के अभी प्लांट्स देखे. हमने यहाँ पर देखा ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स. क्लियर. ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स आर mostly a green plant that are prepared their food on, and the second type is heterotrophs, and the example of heterotrophs is parasites, insectivorous and saprophyte and symbiotic relationships. Okay. And there is keywords. यहाँ पर तो chapter end हो गया. Now it's time to complete our exercise. Okay. So these keywords I think you did that, and the remaining keywords is saprophyte, saprotroph, saprotrophic and stomatas. So इनको भी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना. एंड देयर आर सम we can say that is a summary of our chapter. So read this. Okay. And the question answers and the answer of these questions I will post these answers tomorrow, and try to find these exercise
सॉल्व करने के लिए देखना, यदि सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर मैं कल आपको बता दूँगी। एंड अभी इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। ओके, बाय।